एंड ऑफ द डे एक फार्मर को बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है उसके प्रोड्यूस का, एज अपोज टू काफी हिस्सा जो बढ़ जाता है मिडिल मैन के अंदर मंडीज में चीजें जाने के कारण। सर नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। थैंक यू। You are Mr. Arpit Maheshwari, and please say something about yourself, sir. Sure. So my name is Arpit. I education background मेरा है कि I have done my computer engineering from IIT Bombay in 2010. उसके बाद I worked for many years in multinationals in India and abroad. And in 2016-17, my wife Sakshi और मैंने हमने decide किया to come back and to basically connect back to the roots, connect back to land. तो 2018 से हमारी जर्नी शुरू हुई where we live right now, and we started this initiative called Jivantika, जहाँ पे we purchased a piece of land and started living a very rural life. हम अपने आप को पूरा lifestyle change करके यहाँ पे लेके आए, and since then we have been learning to grow our own food, to promote sustainable living and help people in their own journeys. That's great. So there's a small journey, not too big, right? From 10 to 2016 and then 18. So what is the exact situation, or what the situation was? You just think कि नहीं अब ये colorful life नहीं, now I'm going to be very in greenery. क्या था reason वो? हमारा एक्चुअली द रीजन वाज वी टुक अ ब्रेक इनिशियली। हमने अपनी जॉब लाइफ से एक ब्रेक लिया था टू ट्रैवल। बोथ मी एंड माय वाइफ, हम दोनों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। वी टुक ऑलमोस्ट अ ईयर का ब्रेक एंड वेंट टू साउथ अमेरिका टू ट्रैवल, गो टू द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बहुत सारी चीजें करी वहाँ पे। बट वन ऑफ द लाइफ डिफाइनिंग थिंग्स व्हिच हैपेंड वाज actually two things. One was actually exposure to nature, much more exposure to nature than our day-to-day metropolitan life. तो हमें चीजें कुछ गहराई में समझ आई, especially कि what is the impact of human activity and lifestyle on the environment, सबसे पहले। So that was very important and deeply moving for us. दूसरा, we were also able to experience a slow living. हमारी आजकल की जो अर्बन लाइफ है इतनी भाग दौड़ और इतनी फास्ट पेस होती है। इन दैट ट्रैवल वी वर एबल टू एक्सपीरियंस की हाउ लिविंग इन अ स्मॉल टाउन और विद जस्ट लेस थिंग्स टू डू इज एक्चुअली मोर हेल्दी, एंड नॉट हेल्दी जस्ट फिजिकल सेंस, फिजिकली, मेंटली, सोशली, उन सब मामले में इट एक्चुअली इज समथिंग दैट इज वी फाउंड आवरसेल्व्स बेटर ऑफ. So a combination of this was actually the turning point, and we decided we will explore our alternatives more. Just because एक setting में है, we would not get stuck to it. We will think about alternatives, explore, and as we kept on exploring, we discovered organic farming. And उसके बाद there has never been any going back. तब से हम basically इसी field में यही कर रहे हैं, and it's been more than 5 years now. Great. So, sir, please share your this 5 years experience actually, while thinking of ki yes, we want to shift 1 year ka break and then doing it and successfully doing it happily. So also inspiring a lot of lives. So please share your experience, like how the idea came and then yes. Yeah. Sure. So one other important bit here is we actually, before starting our own journey or before kind of buying our own piece of land, we decided to first get the first-hand experience. But Sakshi and I decided कि before taking such a major step or change in lifestyle, हम इसको experience करेंगे first hand. And what we did was we volunteered on other farms. तो इंडिया में especially in the south, in Auroville, we found some very good bunch of farms which are mature organic farms, जहाँ पे हमें permaculture, natural farming जैसे concepts देखने को मिले, and we were able to work on these farms as volunteers for a while. So that actually was the first starting point for us. उससे हमें confidence आया कि this is something we want to do. We want to kind of build our own project like this, and then we decided to buy a land. So we live in Madhya Pradesh, Western Madhya Pradesh में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के पास में हम रहते हैं. We live in a small town called Badnagar, और इसी के पास में हमारा 2.5 kilometers पे we have a small farm जहाँ पे we practice everything that I'm talking about. So that's where Jivantika is, and the journey has been
और वेरी ऑर्गेनिक, द जर्नी इटसेल्फ हैज बीन वेरी ऑर्गेनिक, स्टेप बाय स्टेप करके बिल्ड करा। एज यू कैन इमेजिन, शुरू में हमें कुछ नहीं आता था, वी वर लिटरली कमिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हमारी डिग्रीज काम नहीं आने वाली थी, तो हमें खुद शुरू से सोच के सीखना था, एंड वी डिड दैट। हमने काफी अपने आप को टाइम भी दिया, लर्निंग के लिए स्पेस भी दिया, एंड देयर हैव बीन सम फैंटास्टिक पीपल जिनसे हमें सीखने को मिला। तो बहुत सारे गुरु हैं हमारे कोई एक गुरु नहीं, many people who have dedicated their lives into natural farming, organic farming, उनसे हम सीखते आए हैं, सीखा है, और एक छोटी सी अब एक तरह से कम्युनिटी सी बन गई है, काफी लोगों को हम इस फील्ड में जानते हैं। तो द लर्निंग गोज ऑन, आज भी हम सीखते रहते हैं, और अब साथ साथ क्योंकि थोड़ा समय हो गया है तो हम इस चीज को शेयर भी करते हैं आगे। So, in Jivantika, sir, like which kind of farming you are following? Sure. So we follow what I think the closest phrase would be natural farming. बिल्कुल लीस्ट इंटरवेंशन के तरीके से कैसे हम अपना खाना उगा सकते हैं, दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। देयर इज पार्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो हम सुभाष पालेकर जी से सीखते हैं, पॉपुलरली जीरो बजट जिसको बोलते हैं। There's part of it which is coming from the lines of permaculture. Permaculture एक डिजाइन मेथोडोलॉजी है। तो हम क्या करते हैं कि काफी चीजों का बेसिकली एक तरह से सिंथेसिस है, या कुछ चीजें कहीं से सीखी, कुछ चीजें कहीं से सीखी। फार्मिंग में क्या होता है, जमीन के साथ काम करने में आपको देखना होता है आपकी जमीन और आपकी सिचुएशन में क्या वर्क कर रहा है। तो कभी भी प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हो सकती, मैं आपको नहीं बता सकता कि आप ये करिए और ये बेस्ट तरीका है। आप काफी एक्सपेरिमेंट्स करें और आपके लिए जो बेस्ट सूटेड होता है वो आप करते हैं। तो हम काफी लोगों से सीख के पर्माकल्चर, नेचुरल फार्मिंग और इस तरह की चीजों से सीखते हैं और अपनी प्रैक्टिसेस को ट्रायल एंड एरर से इम्प्रूव करते रहते हैं। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है, एंड द फार्मिंग यू आर डूइंग, सो इज इट लाइक कि बहुत नियर अबाउट सेम चीज है या इट्स समथिंग डिफरेंट, कैसे कहेंगे आप? तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के डेफिनेटली कंपोनेंट्स हैं, बिकॉज हमारी इंडियन ट्रेडिशनल फार्मिंग के काफी अच्छे पहलू रहे हैं। देयर हैज बीन सो मच नॉलेज जो कि काफी जनरेशंस के थ्रू पास होता था, काफी अच्छी सो कॉल्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। आजकल हम हर चीज के लिए सस्टेनेबल करना चाह रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस वर ऑटोमेटिकली सस्टेनेबल। तो डेफिनेटली उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, कि जैसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस काफी उस समय हुआ करती थी जहाँ वाटर टेबल बहुत ऊंचा था, ग्राउंड वाटर बहुत इजीली अवेलेबल था। तो अब हमें ऐसे टाइम्स में जहाँ रहना पड़ रहा है जहाँ पे वाटर टेबल इज वेरी लो, वाटर स्कैर्सिटी बहुत ही ऊपर नीचे होती है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रेन पैटर्न, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, थोड़ा हाइब्रिड मॉडल निकालना पड़ता है आपको, कि कुछ मॉडर्न चीजों को भी समझें, कुछ अपने टाइम के हिसाब से चीजों को जो इम्पोर्टेंट है, along with some practices. One of the examples of traditional practices is कि जैसे देसी बीज होते हैं, तो हमारी पूरी खेती में हम ऑलमोस्ट 100% देसी बीज यूज करते हैं, कभी भी हाइब्रिड या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज नहीं करते हैं। बिकॉज नेचुरल फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके प्लांट के डीएनए के अंदर दम हो, इम्यूनिटी हो, और वो चीज हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड में नहीं होती, इसलिए उन पे ज्यादा पेस्ट और डिजीजेस लगते हैं। तो एक ट्रेडिशनल हमारे एग्रीकल्चर और प्रैक्टिसेस की बहुत अच्छी देन है हमारे देसी बीज, जिनको हम काफी ज्यादा यूज तो करते ही हैं, प्रमोट भी करते हैं, हम शेयर करते हैं लोगों से। एंड वी ट्राई टू हैव अ स्मॉल सीड बैंक है हमारा, जहाँ पे हम अलग अलग सब्जियों की, अलग अलग क्रॉप्स की वैरायटी को, देसी वैरायटी के बीजों को कंटिन्यू करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। अभी आपने बताया ट्रायल एंड एरर, हाँ, चेंजेस करते हैं। सो सबसे ज्यादा क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा है सिंस यू स्टार्टेड, या एंड हाउ यू ओवरकेम, एंड वो जो ट्रायल वाला पार्ट है एंड एरर एंड देन अगेन लुकिंग फॉर न्यू सॉल्यूशन, सो प्लीज एक्सप्लेन दैट। श्योर। तो एक चीज जो हम काफी हमारी फिलॉसफी में रही है वो है नो टिलिंग या मिनिमम टिलिंग। आजकल की आप अब कन्वेंशनल सो कॉल्ड हमारी खेती देखोगे तो काफी हम लैंड को मल्टीपल टाइम्स टिल करते रहते हैं, पूरा ट्रैक्टर खेतों पे घूमता रहता है। डेफिनेटली उसके कुछ फायदे हैं, ऑपरेशनली वो हेल्प करता है फार्मर्स को अपना मैनेज करने के लिए, लेकिन जो हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज आपकी सॉइल के अंदर जो जीवाणु, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ। और जितना हम लैंड को ओवर टिल करते हैं उतना माइक्रोबायोलॉजी नीचे की डिस्टर्ब होती है, एंड वी एंड अप व्हाट दैट इज रियली व्हाट आई थिंक इज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फर्टिलिटी और कुछ नहीं है, वो बैक्टीरिया, फंगाई, बहुत सारे मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन है जो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं और जिनका घर है।
तो जितना हम उनका घर डिस्टर्ब करते हैं, आई थिंक वहीं पे हमारी फर्टिलिटी और एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस डिस्टर्ब होती है। ये बोलना तो आसान है, लेकिन इसको करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हमारी इंडियन कंडीशंस के अंदर जहाँ बारिश बहुत कम टाइम होती है, हम ऐसे क्लाइमेट में हैं, बहुत सीजनल रेनफॉल होती है, और हम 8 से 9 महीने का एक ड्राई सीजन होता है। इसके ऊपर एक और स्पेसिफिक चैलेंज है कि हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारी मिट्टी इज ब्लैक कॉटन सॉइल, सो इट इज प्रीटी मच ऑल क्ले, इट इज हेवी क्ले सॉइल, काफी चिकनी मिट्टी है। तो मैनेजिंग कंजर्वेटिव टिलिंग इन क्ले सॉइल इज नॉट इजी, तो वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है। एंड अभी कीप वर्किंग ऑन इट। हमने उसके कुछ कुछ इलाज निकाले हैं, थोड़े लोकल लेवल की कैसी चीज़ों को इमेंड कर सकते हैं। ज़्यादा पेड़ लगाना, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि आपके सॉइल को ओपन करते हैं, तो सॉइल ओपनिंग रूट्स वाले डीप ट्रीज लगाना, इस तरह की चीज़ें, मल्चिंग करना एंड सो ऑन। तो लॉट ऑफ सच प्रैक्टिसेस हम ट्रायल एंड एरर करके अब उस पॉइंट पे आ गए कि जब हम एक्चुअली अपनी लैंड को काफी कम टिल करते हैं। वेरी लिटिल पार्ट ऑफ द लैंड इज टिल्ड फॉर वंस अ ईयर, एंड इससे क्या है कि हम सॉइल की बायोलॉजी को प्रिजर्व भी रख पाते हैं, येट एट द सेम टाइम वी हैव गुड ग्रोथ ऑफ ट्रीज। शुरू शुरू में जो हमने काफी स्लो ग्रोथ एक्सपीरियंस किया था बिकॉज ऑफ लेस टिलिंग, नाउ दैट हैज पिक्ड अप अगेन। ओके ओके, सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सर। तो यहाँ पे मेरे को लाइक एक स्ट्रेट सवाल मन में आ रहा है सर, विद लाइक यू हैव अ गुड डिग्री, ओके, एंड विद दैट फार्मिंग यू नो नॉलेज, सो डू यू रियली फील दैट, अभी फिलहाल फिर भी आपने कहा कि एक टाइम के बाद डिग्री इट्स नो यूज, बट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग मी, तो आपको लगता है कि यस एजुकेशन डू हेल्प यू अ लॉट इन दैट विच आवर जनरली जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है समझने में, या काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कि एक्सपीरियंस से वो समझ आता है? सो प्लीज फोकस ऑन दैट। या श्योर श्योर श्योर, नहीं आई थिंक एजुकेशन की तो नॉट जस्ट फार्मिंग, आई फील लाइफ में काफी जगह यूज आता है। व्हाट आई मेंट अर्लियर वाज कि हमारी आईआईटी डिग्री हमें फार्मिंग नहीं सिखा सकती थी, लेकिन हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा, इज क्यूरियोसिटी, चीजों को जानने की इच्छा, और चीजों को जानने का एक फ्रेमवर्क, कैसे चीजों को समझा जाता है, एक साइंटिफिक माइंडसेट आता है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है लाइफ में। आप किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आप नई चीजें सीख सकें, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, जिस भी फील्ड में आप हो। तो आई थिंक हमारे फार्मर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो एजुकेशन को साथ लेके चलें, नया इनोवेटिव करेंगे तो दे विल एक्चुअली हेल्प यू बिकम मोर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो जस्ट बेटर एट व्हाट यू डू। वेरी ट्रू सर। एंड रिलेटेड टू दिस, लाइक हमारे जो किसान भाई है, फार्मर्स है, ये जनरली इतना बिजनेस माइंडेड भी नहीं होते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, सो हाँ या दे कीप ऑन फोकसिंग ऑन गुड प्रोडक्शन, बट you know despite like not having proper knowledge or idea or kind of less business minded, they are not able to get their like rewards on that, है ना, ऑफ कि कोर्स, या प्रोडक्शन तो अच्छा हो गया लेकिन उसके हिसाब से अर्निंग नहीं हुआ। एंड what is your strategy, what you do and your suggestions? जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखने की है फॉर अ फार्मर इज वन, दे मस्ट स्टेप अप। आप उस तरह से खेती नहीं कर सकते जैसे आज से 30-40 साल पहले किया करती थी कि बस हमने अपना प्रोड्यूस उगा दिया और कहीं से मैजिकली हमें मिल जाएगा। और इसके मल्टीपल कारण है, हम इसके डेप्थ में जाएं। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो पॉलिसीज हैं, आज भी इतना कोशिश करने के बाद भी वो इतने फार्मर फ्रेंडली नहीं है। एंड ऑफ द डे एक फार्मर को बहुत छोटा सा हिस्सा मिलता है उसके प्रोड्यूस का, एज अपोज टू काफी हिस्सा जो बढ़ जाता है मिडिल मैन के अंदर मंडीज में चीजें जाने के कारण। तो एक फार्मर इवन अगर एजुकेटेड पूरा नहीं भी है, आज एक फार्मर के पास एक अच्छी चीज क्या है, टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है। हर किसान के पास आज की तारीख में स्मार्टफोन अपना घूमेगा। तो एक चीज जो वो फार्मर कर सकता है कि धीरे धीरे अपने आप को खुद इस लेवल एक अडल्ट होके भी एजुकेट करे। एक वो कॉलेज वाली एजुकेशन, स्कूल वाली एजुकेशन का तो वो मिस आउट कर भी अगर गए हैं, उसके बाद भी वो अपने आप को मॉडर्न प्रैक्टिसेस से एजुकेट कर सकते हैं। क्या फसल लेनी है, कैसे भेड़ चाल में आसपास के लोगों की तरह ओवर चल के वो ना करें जिसपे रेट कम मिलेंगे, कैसे कुछ नया करें, कुछ अलग करें। और दूसरा जो चीज है कि एक किसान के पास आज ऑप्शन नहीं बचा है, अगर उसको एक्चुअली अपना फेयर शेयर चाहिए, उसको डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाना पड़ेगा। जितना वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, वो केवल एंड ऑफ द डे एक विक्टिम बन के रह जाएगा। आई थिंक बिकॉज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है,
तो देयर इज नो स्टॉपिंग देम। किसी को एमबीए की डिग्री नहीं चाहिए, आप अपने कस्टमर ढूंढ सकते हो, आप अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को बड़ा आसान बना देता है। तो इट इज़ अ गुड यूज ऑफ मीडिया, जहाँ पे हम सब इतने हाइपर कनेक्टेड है कि किसान भी अपने आप को एक कनेक्ट करके अपना खुद के कंज्यूमर्स ढूंढ सकता है और उनसे एक जो रीजनेबल प्राइस है चीज़ों की उसके प्रोड्यूस की वो ले सकता है। तो वी एक्चुअली हैव डिसाइडेड, हम कमर्शियली सेल तो करते हैं नहीं, वी आर अ सस्टेनेंस फार्म। हम एक्चुअली केवल उतना ही उगाते हैं जितना हमारी पारिवारिक जरूरतें हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग विजिट करते हैं वॉलंटियर करते। तो वी आर अ सस्टेनेंस फार्म जो कि बिलीव्स इन वेरी हाई डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 क्रॉप हम एक्चुअली 50 चीजें उगाते हैं, लेकिन हम अपनी ज्यादा से ज्यादा जरूरतें मीट करने की कोशिश करते हैं। तो मोर देन 80% ऑफ आवर ओन फूड वी ग्रो ऑन द फार्म। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। एट द सेम टाइम हम, जैसे मैंने बताया, आवर फोकस इज इन एजुकेशन, आवर फोकस इज इन एक्चुअली क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो हम कपल ऑफ थिंग्स हैं जिसके थ्रू लोगों को अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमारा सबसे पहला मॉडल है वॉलंटियरिंग का। हम फार्म पे लोगों को बुलाते हैं कि जब तक क्या है कि काफी चीजों के बारे में यूट्यूब वीडियोस होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन जब तक आप अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी, तो वो कोई भी चीज जो है वो उस अनुभव के बराबर नहीं आ पाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रोग्राम है इट्स वॉलंटियरिंग प्रोग्राम, कि आप फार्म पे आके कुछ दिन तक काम करिए। भले ही वो प्रोफेशनल किसान हो जो पहले से रूरल एरिया में रह के खेती करते हैं, या भले ही वो अर्बन लोग हों जो कि इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आजकल काफी लोग अपना एक सोचते हैं कि क्यों ना हम भी थोड़ा सा एक लैंड के पास रखें, खेती करें, और या रिटायरमेंट प्लान लोग बनाते हैं कि अपना एक फार्म हाउस हो। टाइम टू टाइम हम कुछ कुछ वर्कशॉप्स भी करते हैं जहाँ पे हम बेसिकली फोकस ओनली ऑन द नेचुरल फार्मिंग पार्ट। 3 डे या 5 डे वर्कशॉप्स हमने इन द पास्ट करी है और हम इस साल के एंड से फिर से रिज्यूम करेंगे उसको। तो मेरे अकॉर्डिंग फार्मिंग, गार्डनिंग, सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की उस पर पहल होना। आई गो फॉर सम सेमिनार्स, मैं सेमिनार्स भी करता हूँ, मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता हूँ कि कैसे हमारे स्कूल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल गार्डनिंग क्लासेस शुरू हो सकती हैं, कैसे एक स्पेस बन सकता है जहाँ बच्चे एक्चुअली सीख सकें वहाँ पे। बट दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स व्हिच वी डू। That's a great initiative, sir. Definitely, स्कूल और कॉलेजेस में तो डेफिनेटली होना चाहिए और तभी जाके ये चीज आगे ना लाइक फ्रॉम रूट ये फ्लो होगा कि यस, गार्डनिंग एंड फार्मिंग, बी क्लोज टू नेचर। जैसे आपने कहा कि आप बुलाते हैं वहां पे सबको, सो दिस इज डायरेक्टिंग मी टुवर्ड्स एग्रो टूरिज्म, सम काइंड ऑफ प्रमोशन ऑफ एग्रो टूरिज्म। सो वो या इट्स अ सॉर्ट ऑफ, तो ये कितना बड़ा है वहां पे एरिया आपका, या कितना फैसिलिटीज कैसे है? प्लीज लेट अस नो। या इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हम उस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास एक परमानेंट रेजिडेंशियल सेटअप नहीं था और वेरी सून हम उसी पे भी इस समय काम कर रहे हैं। वी आर गेटिंग अ गेस्ट हाउस बिल्ट ताकि लोग आके यहाँ पे थोड़ा लॉन्गर टर्म रह सकें। हमारा फार्म बहुत बड़ा नहीं है, द फार्म इज ओनली 1.5 acres, बिकॉज इस फार्म को आप एक तरह से एक, इट्स लाइक अ लैब, मतलब जैसे लैब में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम अपने खेत को उसी तरह देखते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस इज नॉट quantity of production, our purpose is actually one diversity and two experimental चीजें करना। तो जितने छोटे में करते हैं आप ज्यादा efficiently कर पाते हैं। और हम slowly अभी एक गेस्ट हाउस यहाँ पे बना रहे हैं ताकि we are able to host people for longer durations। सर, जो आपने मड हाउस बनाया है तो प्लीज उसके बारे में कुछ कहिए। श्योर। तो साक्षी और मेरा हमेशा से सपना था कि जब हमारा खेत, हम अपनी लैंड लेंगे तो उसके बीच में एक बढ़िया मिट्टी का पुराने स्टाइल का घर होना चाहिए। तो हमने 2018 में जब जमीन खरीदी तो ऑलमोस्ट 18 के दिसंबर 18 से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2 से 3 महीने लग गए हमें बनाने में, जहाँ बिना किसी भी ईंट और बिना सीमेंट के यूज के हमने एक बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 200 स्क्वायर फीट का एक कमरा बनाया, उसको हम मड हाउस बोलते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि केवल जो सारा मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है, वो खेत का है। तो उसमें 2 तरह की अलग अलग मिट्टी लगती है, काली मिट्टी का प्रयोग हुआ है और एक थोड़ा मुर्रम का प्रयोग हुआ है। और उसके अलावा उसमें गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है, सुकला बोलते हैं, उसका यूज किया है। तो इट इज ओनली मेड विद दैट, कुछ भी मटेरियल बाहर से नहीं आया। वो आज भी बहुत बढ़िया टिका है। उसको केवल मिट्टी के घर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपको बारिश से बचाना होता है उसको। उसके अंदर आप अभी, आज जैसे अभी अप्रैल का टाइम है, मैं अभी 12 बजे फार्म से आ रहा था, आप फार्म के अंदर बैठेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा अप्रैल का महीना है कि जनवरी का महीना है। वो पूरा थर्मली रेगुलेटेड रहता है वहाँ पे, बिल्कुल अच्छी ठंडक रहती है और बड़ा पीसफुल लगता है उसके अंदर बैठना।
तो दैट इज द सेंटर ऑफ द फार्म। वो हमारे लिए बहुत ही इट्स लाइक लेबर ऑफ लव। हमने अपने हाथ से उसको बनाया है, मैंने और साक्षी ने। आप जो पर्मा कल्चर कह लीजिए या फिर नेचुरल कल्चर, जिस तरीके से आप करते हैं, ठीक है, उसका जो एक्चुअल बेनिफिट नेचर को होता है, या फिर यू कैन से द यू नो द बेनिफिट विच अ फार्मर कैन गेट and related to the consumer, please say something. तो नेचुरल फार्मिंग या इवन पर्माकल्चर, आप इन सब सारी मेथोडोलॉजीज में एक कॉमन चीज देखेंगे तो वी आर ट्राइंग टू मेंटेन और इम्प्रूव आवर लेवल्स। मतलब और हमारा सारा खाना, हमारा फाइनली अगर हम फार्मिंग की बात करते हैं तो सब कुछ आता है मिट्टी से। जितना मिट्टी में जान होती है, हाउ गुड एंड फर्टाइल द सॉइल इज, उतना अच्छा प्रोडक्शन होता है एंड क्वालिटी फूड आता है। तो एवरीथिंग इन नेचुरल फार्मिंग एंड इवन पर्माकल्चर, पर्माकल्चर का वर्ड यहीं से आया है, परमानेंट एग्रीकल्चर। तो कैसे मिट्टी के लेवल्स को एटलीस्ट मेंटेन करना है, इफ एनीथिंग इम्प्रूव करना है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सोचने की है कि जो तीनों पहलू हैं, नेचर, प्रोड्यूसर यानी फार्मर और कंज्यूमर, तीनों का हित एक्चुअली एक ही चीज में। हम कभी कभी सोचते हैं कि इसका भला होगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा गेम नहीं है। गेम एक्चुअली विन विन हो सकता है, क्योंकि जब आप इन प्रैक्टिसेस को जो कुदरत ने बनाई है, जो बिल्कुल लॉज ऑफ नेचर है, उसको फॉलो करते हुए अगर आप खेती करेंगे तो वन, नेचर इज ऑब्वियसली हैप्पी बिकॉज आप उसके लॉस फॉलो कर रहे हो। जो प्रोड्यूसर है, फार्मर है, हो सकता है उसको इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा हिट लेना पड़े, और वो होता है। सबसे पहले लोग जब जंप करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो दे हैव टू टेक अ हिट। एंड उसको समझने का ये तरीका है कि आप एक डैमेज्ड लैंड के साथ काम कर रहे हो तो उसको रिकवर करने में टाइम लगेगा। आप जैसे हमारा शरीर होता है, एक बार हम बीमार हो जाते हैं तो उसके रिकवरी पीरियड होता है, उसी तरह एक लैंड का भी रिकवरी पीरियड है। बट एक बार वो 3-4 साल में रिकवर कर जाती है, देन एक फिर उस लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना और जो एक दूसरी लैंड पे केमिकल फार्मिंग करना है, उसके प्रोडक्शन काफी सिमिलर लेवल के आते हैं। और थर्ड, जब हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर और नेचर ही नहीं, कंज्यूमर इज ऑल्सो बेटर ऑफ बिकॉज क्वालिटी फूड। आज हमारी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आई गेस मोस्टली हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, और वो इसलिए होती है क्योंकि फूड में क्वालिटी नहीं बची, फूड में न्यूट्रिशन नहीं बचा। हम खा तो रहे हैं लेकिन फिर भी हमें हर चीज की कमी है, हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। राइट। तो जब फूड विल बी हेल्दी एंड ग्रोन इन अ नेचुरल वे तो कंज्यूमर इज ऑब्वियसली बेटर ऑफ। राइट सर, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड सर। और ये मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे फार्मर्स भाई के पास जाएगा, तो गेट देम मोटिवेटेड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन यू गिव एक्चुअली, कि बॉडी ऑल्सो नीड्स अ रिकवरी टाइम। सो एनीथिंग, किसी चीज़ में आप शिफ्ट होना चाहते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो टाइम तो देना पड़ेगा इन एनी स्फीयर, राइट। सो एंड सर, इन फ्यूचर और क्या प्लानिंग है रिलेटेड टू फार्मिंग सर? श्योर, ये जो हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू करना ही है। आई वांट टू वर्क अ लॉट मोर विद स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो मेरे लिस्ट में काफी ऊपर है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों के साथ काम करने में एक तो मजा भी सबसे ज्यादा आता है, और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी काम भी वही है। कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन ने एनवायरनमेंट को लेके काफी गलतियां करी हैं, काफी चीजें हमने ऑलरेडी खराब कर दी हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम एटलीस्ट चीजों को सही से कम्युनिकेट कर सके हमारी आने वाली जनरेशन को, और एक सही रियल पिक्चर बता सके कि उनको एक्चुअली कैसे संभलना है। तो आई थिंक दैट टॉप्स माय लिस्ट टू वर्क मोर विद किड्स ऑन एनवायरनमेंट एजुकेशन। और दूसरा, जिस तरह हमने जीवंतिका को एज अ मॉडल फार्म यहाँ पे बनाया है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू ऑल्सो कंसल्ट अदर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे इंडिया के कहीं भी कोने में लोग अपना खुद का फार्मिंग करना चाहते हैं, खुद का एक फार्म हाउस बनाना चाहते हैं या कोई कमर्शियल वेंचर करना चाहते हैं, तो एज अ कंसल्टेंट साक्षी एंड आई विल हेल्प देम। हम अपना एक्सपीरियंस से उनकी पूरी मैपिंग में हेल्प करेंगे, चॉइसेस में हेल्प करेंगे, कैसे पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है फाइनेंशियली, लॉजिकली, ट्रेनिंग वाइज। तो हम इस पे काम करते हैं ताकि हमारा ड्रीम है कि ऐसे 50-100 नहीं, ऐसे कम से कम 1000-2000 दूसरे जीवंतिका पूरे इंडिया में हो। तो दैट इज द ड्रीम। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपके लिए सर। बीइंग लाइक फ्रॉम अ यंग जनरेशन, had a good life, and then being into the farming, so what message actually you want to give to young generation, anybody interested with the farming or kind of they want to come too close to nature, if anybody not, so all together? Sure. 2-3 चीजें हैं मेरे दिमाग में। आई थिंक सबसे पहले मुझे लगता है कि एक चीज जो कि हमारे यूथ इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं इज
आवर हेरिटेज, हमें काफी चीजें एज एन इंडियन हमारी कल्चर के अंदर ट्रेडिशनली मिली हैं. आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू मतलब फॉर एग्जाम्पल वर्शिपिंग काउज, मैं उसके बियॉन्ड जा रहा हूँ. हमारी कल्चर इतनी रिच है, आजकल हम उसको बहुत ये 2-3 चीजों के अंदर समेट देते हैं, जबकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कल्चर में, रिलेटेड टू फार्मिंग, रिलेटेड टू हम क्या खाना खाते थे, हम कैसे रहते थे. सस्टेनेबल लिविंग की आजकल हम मॉडर्न टर्म्स में बात करते हैं, बट आप पुराना हमारा लाइफस्टाइल देखें जो आयुर्वेदिक और योगिक लाइफस्टाइल होता है, दैट इज एज सस्टेनेबल एज इट कैन बी. तो यूथ से मेरा यही कहना है कि फर्स्ट आई थिंक हमें ब्लाइंडली कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए वेस्टर्न चीज़ों को. वेस्ट से काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें मिलती है, नो डाउट, मैं खुद भी उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट ब्लाइंडली नहीं करना है. हमें उसके अंदर अपना बिल्कुल परख लगानी है, अपना देखना है कि क्या चीज़ें हमारे लिए हमारे कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, और एट द सेम टाइम जो बचा हुआ बैलेंस है ट्रेडिशनल चीज़ों के साथ वो बना के रखना है. जिस दिन हमने तालमेल थोड़ा सा तोड़ा और सिर्फ एक ही चीज़ पे चले गए, तो वी आर बेसिकली नॉट डूइंग द राइट थिंग. और दूसरा मुझे लगता है कि जितना आप अपने 20s में हैं, राइट, आपके अंदर एक कैपेसिटी है टू एक्सपेरिमेंट, और आपको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. हम एक ऐसे टाइम पे जीते हैं, एवरीबडी इज सो एक्सपोज्ड, हम सबके पास सोशल मीडिया है, हमें पता है दुनिया में कोने कोने में क्या होता है. क्यों ना उसको एक अच्छे यूज में डालें, क्यों ना उससे कुछ एक अच्छा करें, कुछ नया करें. तो डू नॉट हेजिटेट टू एक्सपेरिमेंट. आप बहुत जल्दी अपनी सिक्योरिटी की चिंता और एक बिल्कुल स्टैंडर्ड ढांचे में ना ढलें. अपने 20s को अपने एक्सप्लोरेशन के लिए रखिए. आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशनली, डजंट हैव टू बी इंजीनियर और फार्मर और कुछ भी हो, लेकिन आप अपनी फील्ड में जो आपके पैशनेट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट जरूर करिए. बिकॉज जब तक आपने वो नहीं किया तो आप एक बहुत ही स्टैंडर्ड रूट में जाके ढल जाएंगे, कोई भी नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपके अंदर का पोटेंशियल उतना निकल के नहीं आएगा. तो दीज आर द टू मेन थिंग्स. और तीसरा, अगर आपको थोड़ा भी नेचर की तरफ इंटरेस्ट है, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करते हैं टाइम स्पेंट इन नेचर एंड टाइम स्पेंट नॉट इन नेचर. ये बहुत जरूरी है. मैंने अपने पर्सनल लाइफ में सीखा था कि जब 14-14 घंटे की नौकरी करी थी, अच्छा जरूर लगता था, काम बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली कुछ मेरे से मिसिंग था, और वो पार्ट था कनेक्शन विद नेचर, जो हमारी वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है. तो मेक श्योर कि वो चीज भी आप ध्यान में रखें. राइट, राइट. ग्रेट सर, एंड थैंक यू सो मच ये स्टोरी शेयर करने के लिए सर. एंड डेफिनेटली आपकी जो इंफॉर्मेशन है, इट इज गोइंग टू हेल्प आउट मेनी पीपल, नॉट ओनली फ्रॉम अर्बन साइड बट ऑल्सो हमारे जो फार्मर्स भाई है, तो सबको बहुत हेल्प करने वाली है. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, गिविंग अस टाइम, एंड वी विश यू अ वेरी गुड luck from Toolsvilla team. And thank you so much, sir. Thank you for the Thanks. time. It was my pleasure to be on this, and I also thank you for the opportunity.